جائزہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اٹلانٹس کی کہانی تو تقریباً سب نے ہی سنی ہی ہے، جو افلاطون سے شروع ہوئی۔ ایک بہت ہی ترقی یافتہ تہذیب، ایک جزیرہ جو ایک ہی دن اور رات میں سمندر میں ڈوب گیا۔ جی لیکن آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ اس کہانی کو ایک بالکل ہی نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اٹلانٹس صرف ایک گمشدہ جزیرہ نہیں تھا، بلکہ شاید وہ پوری قدیم دنیا کا ایک مرکزی علمی نظام تھا، ایک ہب کی طرح۔ ہاں، ایک ہب۔ اور جب یہ نظام تباہ ہوا تو دنیا بھر میں اس کی بس بکھری ہوئی یادیں، اس کے ٹکڑے رہ گئے۔ آج ہم ان ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر بنانے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اور یہ تصویر بہت ہی حیران کن ہے۔ ذرائع کا جو مول نقطہ ہے وہ یہ نہیں کہ اٹلانٹس تھا یا نہیں، اچھا، بلکہ یہ کہ جسے ہم مختلف تہذیبوں کی آزادانہ ترقی سمجھتے ہیں، جیسے مصر، میسوپوٹیمیا یا امریکہ کی قدیم تہذیبیں، وہ دراصل ایک ہی گمشدہ تہذیب کی بکھری ہوئی یادیں ہیں۔ واہ! اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تاریخ کا ہمارا پورا ماڈل ہی شاید غلط ہو۔ تو آئیے اس کی شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی، افلاطون سے۔ وہ ایک بہت ہی ڈرامائی منظر پیش کرتا ہے نا؟ جی، بہت ڈرامائی۔ شدید زلزلے اور سیلاب آئے، اور ایک ہی دن اور رات کی بارش میں اٹلانٹس کا جزیرہ بھی اسی طرح غائب ہو گیا اور سمندر کے نیچے ڈوب گیا۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جو ذہن میں رہ جاتی ہے۔ بالکل۔ لیکن کیا یہ صرف ایک فلسفی کی تمثیلی کہانی تھی؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ افلاطون اکیلا نہیں تھا۔ افلاطون کے کچھ ہی عرصے بعد کرینیٹر نامی ایک اور یونانی فلسفی نے، جو افلاطون کی اکیڈمی سے ہی وابستہ تھا، اس معاملے پر تحقیق کی۔ اچھا۔ ذرائع کے مطابق وہ خود مصر گیا اور دعویٰ کیا کہ اس نے وہاں مصری پادریوں سے اس کی تصدیق کی ہے۔ تصدیق کی؟ جی، مصری پادریوں نے اسے وہ ستون دکھائے جن پر اٹلانٹس کی پوری تاریخ لکھی ہوئی تھی، اور یہ ستون 300 قبل مسیح میں بھی موجود تھے۔ ایک منٹ، تو ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف سنی سنائی بات نہیں تھی، بلکہ اس کا کوئی فزیکل ثبوت تھا۔ جی، ایک فزیکل ثبوت، جسے افلاطون کے بعد آنے والے ایک اور فلسفی نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ بالکل، یہی وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ تو کہانی کو بالکل بدل دیتا ہے۔ یہ اسے ایک افسانے سے نکال کر تاریخ کے دائرے میں لے آتا ہے۔ بالکل، یہ اسے ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ایک اور مورخ مارسیلس اپنی ایتھوپیا کی تاریخ میں لکھتا ہے کہ بحر اوقیانوس میں 7 جزیرے تھے، اور ان جزیروں کے باشندوں نے اپنے آباء و اجداد سے ایک عظیم جزیرے اٹلانٹس کی کہانی سن رکھی تھی، جو کبھی سمندر پر حکمرانی کرتا تھا۔ تو یہ خیال صرف یونان یا مصر تک محدود نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بحر اوقیانوس کے ارد گرد کی ثقافتوں میں بھی پایا جاتا تھا۔ یہ ایک وسیع پیمانے پر مانی جانے والی حقیقت تھی۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم ایک لمحے کے لیے ذرائع کی بات مان لیں کہ اٹلانٹس ایک حقیقی جگہ تھی جو تباہ ہو گئی، تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ہماری تاریخ پر کیا اثر پڑا۔ جی، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ قدیم تہذیبوں کا سارا علم، مذہبی، فلسفیانہ، سائنسی، اسی ایک ماخذ سے آیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ ایک انقلابی دعویٰ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ انسانی تہذیب کی ترقی لینئر نہیں تھی، مطلب انسان نے دھیرے دھیرے غاروں سے نکل کر ترقی نہیں کی، بلکہ ایک بہت بڑا ریسیٹ ہوا تھا۔ بالکل، ایک انتہائی ترقی یافتہ تہذیب تباہ ہوئی، اور اس کے بچ جانے والے چند لوگوں نے دنیا کے مختلف کونوں میں علم کے بیج بوئے۔ اور ذرائع اس کے ثبوت کے طور پر کچھ بہت ہی دلچسپ مثالیں دیتے ہیں، جیسے کہ سورج کی پوجا۔ لیکن سورج کی پوجا تو بہت عام ہے، مصریوں نے بھی کی، انکا تہذیب نے بھی کی۔ کیا یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ قدیم لوگ آسمان کی سب سے طاقتور چیز کی پوجا کرنے لگیں؟ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن ذرائع اس میں ایک گہرا ربط دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بات صرف سورج کی پوجا کی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کے فلسفے اور رسومات کی ہے۔ اچھا۔ اٹلانٹس میں سورج کی پوجا ایک بہت ہی پیچیدہ اور روحانی نظام تھا۔ وہ سورج کو صرف ایک آگ کا گولا نہیں، بلکہ ایک الہی اصول، ایک کائناتی ذہانت کا ظاہری نشان سمجھتے تھے۔ صحیح،
ज़राए के मुताबिक यही फ़लसफ़ा बाद में ईसाईयत जैसी मजहबी रिवायात में भी मुंतकिल हुआ, जहाँ रोशनी और निजात दहिंदा का तस्वर मरकज़ी हैसियत रखता है। तो ये एक ही सॉफ्टवेयर था जो मुख्तलिफ सकाफ़तों में थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ इंस्टॉल हुआ? क्या खूब कहा है, बिल्कुल यही उनका नुक्ता है। ये दिलचस्प है। तो ये आज़ादाना ईजाद नहीं बल्कि एक इल्म की मुंतकिली थी। और सिर्फ सूरज ही नहीं, ज़राए दो और बहुत बुनियादी अलामतों का भी जिक्र करते हैं, सलीब और सांप। जी, ये दोनों तो आज भी हमारी दुनिया में बहुत ताकतवर अलामतें हैं। इनका अटलांटिस से क्या ताल्लुक है? ज़राए के मुताबिक अटलांटिस में ये दोनों अलामतें अलग अलग नहीं थीं, बल्कि एक साथ इलाही हिकमत की नुमाइंदगी करती थीं। एक साथ? जी, सलीब 4 सिमतों यानी मादे की दुनिया की अलामत थी, जबकि सांप हिकमत, तवानाई और लाफानी जिंदगी की अलामत था। वाह! ये दोनों मिलकर रूह और मादे के इत्तिहाद को जाहिर करते थे। जब अटलांटिस तबाह हुआ तो ये इल्म बिखर गया। कुछ सकाफतों ने सलीब को अपना लिया, कुछ ने सांप को, और इनका असल मुत्तहिदा मतलब कहीं खो गया। तो हम आज इन बिखरे हुए टुकड़ों को देखते हैं। बिल्कुल। वाह, ये सोचना ही हैरानकुन है कि दो ऐसी अलामतें जो अक्सर एक दूसरे की जिद समझी जाती हैं, वो दरअसल एक ही सिक्के के दो रुख हो सकती हैं। सही। और सांप की ये अलामत, ये तो हमें सीधा वस्ती अमेरिका ले जाती है ना, परों वाले सांप की तरफ। बिल्कुल, ये इस मामले का एक बहुत अहम हिस्सा है। माया और केचे जैसी तहजीबों के लिए इनका सबसे बड़ा देवता या सकाफती हीरो क्वेटज़लकोआट्ल या गुकुमाट्स था, जिसका मतलब है परों वाला सांप। जी, ये हिकमत और तहजीब लाने वाला देवता था। वो कहाँ से आया? उनकी अपनी कहानियों के मुताबिक वो समुंदर से आया था। समुंदर से? ज़राए इस बात को बुराए रास्त एटलांटिस से जोड़ते हैं। वो बताते हैं कि एटलांटिस के सुनहरी दरवाज़ों के शहर से मुक़द्दस परों वाले पादरी निकले, जिन्होंने दुनिया भर का सफ़र किया और हिकमत की चाबियां फैलाईं। तो क्वेटज़लकोआट्ल की कहानी दरअसल उनमें से किसी एक अटलांटीन मुबल्लिग की आमद की तारीखी याददाश्त हो सकती है? यही ज़राए का दावा है। तो जिसे हम द्योमालई कहानी समझते हैं, ज़राए उसे एक तारीखी वाक़या करार दे रहे हैं। एक ऐसा वाक़या जिसमें एक आला तहजीब के नुमाइंदे कम तरक्की याफ्ता लोगों को इल्म सिखा रहे हैं। जी बिल्कुल। ये तो हमें सीधा अगले नुक्ते पर ले आता है। समुंदर से आने वाले देवता, ये सिर्फ वस्ती अमेरिका की कहानी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये एक आलमी नमूना है, एक ग्लोबल पैटर्न, और ये इस नजरिए का शायद सबसे मजबूत सबूत है। अच्छा, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जिनका आपस में कोई राब्ता नहीं था, एक जैसी कहानियां मिलती हैं। एक मुहज्जिब करने वाला देवता या हीरो समंदर से आता है, मकामी लोगों को जीने का तरीका सिखाता है और फिर वापस चला जाता है या गायब हो जाता है। इसकी कुछ मिसालें दें, क्योंकि ये वाकई बहुत अहम है। सबसे क्लासिकी मिसाल कल्दानियों यानी चैल्डियंस की है, जो कदीम मेसोपोटामिया में रहते थे। उनकी तारीख के मुताबिक उनके आबाओ इजदाद वहशी थे। फिर एक दिन खलीज फार्स से एक अजीब मखलूक निकली जिसका नाम ओएनएस था। ओएनएस? जी, और उनकी तफसीलात बहुत दिलचस्प हैं। उसका जिस्म मछली का था, लेकिन मछली के सर के नीचे एक इंसान का सर था और इसके पांव भी इंसानी थे, जो मछली की दुम से निकले हुए थे। आधा इंसान आधा मछली। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है। बिल्कुल, लेकिन ये हजारों साल पुरानी तारीख का हिस्सा है। ओएनएस दिन के वक्त पानी से निकलता, साहिल पर मौजूद लोगों से बात करता, उन्हें लिखना, पढ़ना, ज़िरात, कानून, फने तामीर, मतलब तहजीब की हर बुनियादी चीज सिखाता। और फिर? वो कुछ खाता पीता नहीं था और शाम होते ही वापस समंदर में चला जाता। कई नस्लों तक वो और इस जैसे दूसरे लोग आते रहे। तो जरा ये सवाल उठाते हैं कि क्या ओआन्स वाकई एक मछली इंसान था? हाँ, या वो एक ऐसी तहजीब का फर्द था जिसके पास जदीद डाइविंग सूट जैसी कोई टेक्नोलॉजी थी और वो किसी करीबी ज़ेरे आब या साहिली अड्डे से आ रहा था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये नमूना दूसरी जगहों पर भी दोहराया जाता है। हमने क्वेटज़लकोआट्ल का जिक्र किया। जी, जो पानी से आया और लोगों को तहजीब सिखाकर सांपों के एक जादुई बेड़े पर वापस समंदर में चला गया। ये कहानियाँ इतनी मिलती जुलती क्यों हैं? कल्दान, माया, ये दोनों तहजीबें जुग्राफियाई और ज़मानी तौर पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है ना? ज़राया यही दलील देते हैं कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इन कहानियों में तफसीलात भी एक जैसी हैं। सिर्फ यही नहीं, शुमाली अमेरिका के कुछ इंडियन कबाइल के शमन भी ऐसी ही कहानियां सुनाते हैं। अच्छा? वो बताते हैं कि बहुत पहले परिंदों के परों से बने लिबास पहने हुए मुक़द्दस आदमी नीले पानियों से आए थे। उन्होंने उनके आबाओ अजदाद को फ़नून और दस्तकारी सिखाई और उन्हें मुक़द्दस रसूमात दी।
तो हर कहानी में मुश्तरका मौजू एक ही है। इल्म और तहजीब मुकामी तौर पर पैदा नहीं हुई, बल्कि समंदर पार से एक तोहफे के तौर पर आई, जिसे ऐसे लोगों ने लाया जो इतने तरक्की याफ्ता थे कि उन्हें देवता समझा गया। अच्छा, तो ये सिर्फ देवताओं की कहानियां नहीं है। ज़राए ये कह रहे हैं कि ये असल में एक आला तहजीब के उस्ताद या इंजीनियर्स थे जी, जो एक बड़ी तबाही के बाद बच गए और दुनिया भर में फैल गए। ये तो पूरी कदीम तारीख को देखने का एक बिल्कुल नया जाविया है। ये देवता दरअसल एटलांटिस के पनाहगुज़ीन थे। यही इन ज़राए का मरकजी ख्याल है। ये उन तमाम बज़ाहिर अलग थलग अफसानों को एक ही लड़ी में परो देता है। ये बताता है कि क्यों दुनिया भर की कदीम तहजीबों में अचानक ज़राअत, फल्कियात और फ़न तामीर का इल्म आ गया। तो ये मकामी जहानत का नतीजा नहीं था? नहीं, बल्कि खोए हुए आला विरसे की मुंतकली थी। ये देवता माफूकुल फितरत हस्तियां नहीं थी, बल्कि एक गुमशुदा आला इंसानी तहजीब के सफ़ीर थे। तो अगर हम इन तमाम नुकात को जोड़ें तो ज़राए जो तस्वीर पेश कर रहे हैं वो ये है कि एटलांटिस सिर्फ एक डूबा हुआ जजीरा नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये कदीम हिकमत का सरचश्मा था, सलीब और सांप जैसी आलमगीर अलामतों का माखज़ था, और समंदर से आने वाले देवताओं की आलमी कहानियों के पीछे की असल हकीकत था। जी, ये हमें तारीख को बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र से देखने पर मजबूर करता है। जी। ये ऐसा है जैसे तारीख का पहला बाब फाड़ दिया गया हो और हम सिर्फ बाद के अबवाब पढ़कर पूरी कहानी समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत तशबीह है। और ये कहानी सिर्फ माजी के बारे में नहीं है, ये गुमशुदा इल्म और उसे दोबारा दरियाफ्त करने की इंसानी जुस्तजू की एक ताकतवर अलामत भी है। ये हमें चैलेंज करती है कि हम तहजीब, मजहब और अलामतों की इब्तिदा के बारे में अपने तमाम मफरूज़ों पर सवाल उठाएं। क्या हम वाकई जानते हैं कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं? ये बहुत गहरे सवालात हैं, और इससे पहले कि हम ख़त्म करें, मैं चाहती हूँ कि आप वो आखिरी नुक्ता भी शेयर करें जो ज़राए में से एक मुहक्किक इग्नेशियस डॉनेली ने उठाया था। ये एक बहुत ही ठोस और दिलचस्प तफसील है। हाँ, ये एक ऐसी तफसील है जो इन तमाम अजीम नज़रियात को एक बहुत ही अमली चीज़ से जोड़ती है। डॉनेली, जो 19वीं सदी के एक बहुत बाअसर मुहक्किक थे, उनका ख्याल था कि एटलांटिस के लोगों ने ही सबसे पहले घोड़े को पाला था। घोड़े को? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जानवरों को पालने का अमल, जो इंसानी तहजीब की एक बुनियादी बुनियाद है, वो भी शायद एटलांटिस से शुरू हुआ। दिलचस्प। डॉनेली ने दलील दी कि यही वजह है कि यूनानी दियोमाला में घोड़ा हमेशा समंदर के देवता पोसीडॉन के लिए मुकद्दस समझा जाता था, जो इत्तेफाक से एटलांटिस का बादशाह भी था। अच्छा, तो ये ताल्लुक इत्तेफाकी नहीं था? उनके मुताबिक बिल्कुल नहीं। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि जब हम घोड़े पर सवार होते हैं या उसे तहजीब की अलामत के तौर पर देखते हैं, तो हम नादानिस्ता तौर पर उस गुमशुदा दुनिया के साथ एक ताल्लुक जोड़ रहे होते हैं। ये वाकई एक ज़बरदस्त सोच है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि तारीख की तहों में और क्या कुछ छुपा हो सकता है, जिन्हें हम रोज़मर्रा की चीज़ें समझते हैं, लेकिन उनकी जड़ें शायद उस भूली बिसरी डूबी हुई दुनिया में हों।